That is, first of all, natural method, barrier method, uterine devices, and oral contraceptives, injection, and implants. On that they discussed regarding the oral contraceptives. Can you say the name of the oral contraceptive given in your NCERT book? Hello? Sir, Saheli. Yes, Saheli. Name the institute what time introduce this type of Central Drug Research Institute, Lucknow. The Central Drug Research Institute in Lucknow. Okay. Acha. First of all, again I am asking you, that means intrauterine devices. Intrauterine devices, that is IUD. These are three types: non-medicated, and second one copper releasing, and third one hormone releasing. Can you give the example of the non-medicated IUD? Sir, loopers. Copper releasing IUD. Yes, sir. Copper releasing. Example of the copper releasing IUD. Sir, Sir, CUT or CU7. Yes, Why the copper is used? Sir, Why the to prevent the mobility of the sperm and prevent the fertilization capacity. Prevent the mobility as well as the prevent the implantation of that means zygote. Okay. So these are some examples. So hormone releasing IUD. Hormone releasing IUD example. Sir, LNG20. LNG20 progesterone. LNG20 and progesterone. Okay. What do you mean by lactational amenorrhea? What is lactational amenorrhea? It is based on the principle that during the period after pasteurization, the ovulation does not occur. Then there is no case of fertilization. It occurs 3 to 6 months after fertilization. Yes, it is correct. That is after fertilization or delivery of the baby, 3 to 6 months. That is chances of menstrual cycle that is rare. At that time, if sexual intercourse occur, no chances of fertilization because the lactation takes place at that time. So no chances of menstrual cycle if in this time the couple are not able to intercourse, then no chance of fertilization. What is periodical abstinence? Sir, it is the method in which couples avoid from sexual intercourse from the day 10 to 17 of the menstrual cycle. Next, surgical method. Surgical method of that means you can say the sterilization. बचा हुआ था. Injection and implantation बचा हुआ था. Yes, sir. Number one, vasectomy. Hello, sir. Injection and implants discussed earlier. Progesterone or implants. Injection or implant means progesterone or progesterone estrogen combination can be used by the female as injection in the skin or on the skin, which prevent the similar, which act as similar to the oral pill. Oral pill consume किया जाता है और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो कॉम्बिनेशन इंजेक्शन है ये इंजेक्शन का रूप में होता है. ठीक है. It also prevent the fertilization also. Now surgical method. Surgical method number one. Surgical method already you have studied vasectomy. 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 Vasectomy, that means in male the small part of the in male the small part of vas deferens, small part of vas deferens is removed
removed and tied, T-I-E-D, removed and tied up through a small, tied up through a small thread, small thread, small thread on the scrotum. स्मॉल थ्रेड नहीं लिख के इसको इंसिशन करो, INCSION on the scrotum. This is called vasectomy. Vas difference को कट दिया जाता है, उसको टाई करके उसको बांध दिया जाता है. This is called the vasectomy. कैसे प्रिवेंट होता है? Vas differences से seminal plasma रिलीज होता है, बट sperm रिलीज नहीं होगा. ठीक है? That is sperm release. It prevents the releasing of the sperm. Seminal vesicles से seminal fluid आता है, but लेकिन sperm release नहीं होगा. That prevent. But here one thing you have to remember. You have studied regarding the pluripotency and totipotency. Hello. Pluripotency means what is pluripotency? Pluripotency. The animal cell have a tendency to regenerate. Animal cell have a tendency to regenerate. This is known as the pluripotency. Plant cell have a tendency to regenerate. This is known as the totipotency. याद है आपको? Yes, sir. Hello. Totipotency and pluripotency. Plant cell में होता है. Plant cell having the power of regeneration. This is called the totipotency. Animal cell having the power of regeneration, this is called the pluripotency. But ये जो vasectomy होता है, तो कभी कभार होता है tendency to join, rejoin. कभी कभार मान लीजिए तो टाई किया जाता है, टाई अगर खुल जाता है तो क्या होगा ना, वो फिर से ज्वाइंट हो जाता है. तो कहीं ना कहीं 1 or 2% इसमें चांसेस है rejoining का. Each and every tissues in our body are having the tendency to regenerate. तो दैट मीन जहां कटिंग करके टाइप किया हो सकता है कहीं खुल जाए और फिर से रीजॉइनिंग का चांसेस होता है. ओके, अच्छा नेक्स्ट ट्यूबेक्टमी. सेकंड में क्या है? ट्यूबेक्टमी. इसको लिख लिया आप लोग. वैसेक्टमी. Yes, sir. हो गया. हाँ, इसके बाद ट्यूबेक्टमी. आपका एनसीईआरटी बुक में दोनों का डायग्राम लिया हुआ है. वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी का डायग्राम दोनों में है. दोनों का डायग्राम एनसीईआरटी बुक में है, और डायग्राम को देखोगे. ठीक है. इसके बाद ट्यूबेक्टमी. नंबर 2 ट्यूबेक्टमी. ट्यूबेक्टमी. ट्यूबेक्टमी के बारे में जानते हैं. इन फीमेल ए स्मॉल पार्ट ऑफ in female, a small part of fallopian tube. Fallopian, a small part of fallopian tube is removed. And tied up with a small incision. Incision in the abdomen. Incision which prevent the ovulation and fertilization. So this is tubectomy in female. A small part of fallopian tube is removed and tied up with a small incision which prevent the ovulation and fertilization.
दिस इज नोन एज ट्यूबेक्टमी। तो सर्जिकल मेथड टू टाइप, एक होता है ट्यूबेक्टमी, अनदर इज वेसेक्टमी। वेसेक्टमी दैट इज वास डिफरेंस को टाई किया जाता है, और ट्यूबेक्टमी दैट इज फैलोपियन ट्यूब को टाई किया जाता है। तो वेसेक्टमी it occurs in male and tubectomy it occurs in female. Okay. Complete. Yes, sir. Yes, sir. Next topic, MTP. पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म. What do you mean by MTP? MTP, medical termination of pregnancy. Termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy, MTP. You will remember it, the full form. Medical termination of pregnancy. Definition क्या है इसका? It is defined as intentional or voluntary. Intentional or voluntary. Intentional or voluntary termination of pregnancy. Termination of pregnancy before full term. मैच्योरिटी होने से पहले इसको विलिंगली और अनविलिंगली इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दिया जाता है. दैट इज नोन एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. मान लीजिए इंडिया में तो ऐसा हो रहा है, अगर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स पता चलता है जो गर्ल चाइल्ड है तो मेडिकल टर्मिनेट किया जाता है. ये कॉमन फेनोमेनन है इंडिया में, बट किसी किसी केसेस में होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अगर इस फिटस को अगर रख दिया जाए इसमें यूटेरस में, तब ये इन फ्यूचर में ये फिजिकली हैंडीकैप्ड बॉर्न बेबी बन सकता है. इस कारण से मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है, बट sometimes willingly, sometimes unwillingly, without consultation of doctor, it is not done. So sometimes so many couple they terminate the fetus before full maturity or full term. This is called the medical termination of pregnancy. Is it legalized in our country? Hello? Yes, sir, एक बार repeat कीजिए, Yes, क्या sir. बोले? Is it legalized in our country? Yes, it is legalized. MTP Yes, sir, was it is. legalized. Yes, sir. आपको लिखना है, it was legalized. ये लिख लिया आप लोग? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Complete. Yes, sir. हाँ. It is legalized. It was legalized in our country in 1971, sir. in 1971 1970 under strict condition under strict condition to avoid misuse ठीक है. किसी किसी कंडीशन में इसको गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया है इन द ईयर ऑफ 1971. वो स्ट्रिक्ट कंडीशन
मैंने कहा है किसी समय अगर मान लीजिए फिटस डेवलपमेंट में कोई मैलफंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स पता चलता है, इन फ्यूचर में अगर वो फिटस डेवलप होकर जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड में अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा और कोई बीमारी, ऐसा बीमारी होता है जो नॉट क्यूरेबल, तो ऐसा अगर फाइंड आउट होता है तो इट इज लीगलाइज्ड। ओके, अगर ऐसा कंडीशन में फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी हो रहा है, मतलब एक बच्चों के बीच में गैप नहीं है ज्यादा, उस समय भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो इसमें आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकता है। अच्छा, किस कंडीशन में ये होता है इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए। द कंडीशन ये कंप्लीट हो गया, इट वाज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री 1971 टू अवॉइड मिसयूज हो गया। इसके बाद condition in which MTP is done, condition in which MTP is done, MTP is done। नंबर 1, इसमें नंबर 1 में फेल्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फेल्यूर ऑफ contraceptives, failure of contraceptives, when continued pregnancy, when continue pregnancy, occur। Number 3, if any malfunctioning of body parts in developing fetus, ठीक है, ये कंडीशंस जो है, इस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो सकता है, दैट मींस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स व्हेन कंटिन्यूड प्रेगनेंसी ऑकर, if any malfunctioning of body parts in the developing fetus, ये 3 conditions in which medical termination of pregnancy is done। Okay, next question, up to which date of the pregnancy it is safe and secure? Can you say? Sir, first 12 weeks mean 3 months. 12 months, 3 months, 12 weeks, that means 12 weeks of pregnancy। इसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट हो गया। फेलियर ऑफ Yes, कंट्रोल, sir, हो गया। Yes, sir। बॉडी पार्ट, हाँ कंप्लीट हो गया ना, लिख लो। Yes, sir, हो गया। नेक्स्ट, it is safe up to, it is MTP is safe up to 12 weeks of pregnancy। Okay, MTP is safe up to 12 weeks, that means 84 days, 84 days ये सेफ होता है। इसके बाद अगर एमटीपी होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट मींस मदर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है, उसका लाइफ का भी रिस्क होता है। ठीक है, तो इसके बाद एमटीपी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो एमटीपी क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट इज एमटीपी? आपको डेफिनेशन लिखना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, व्हेन इट इज डन, ये भी लिखना है, इज इट इज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री। इसका साथ क्वेश्चन, एक वेरी कॉमन क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन,
MTP एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, इज इट लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री? तो आपको लिखना यस इट वाज लीगलाइज्ड इन आवर कंट्री इन द ईयर ऑफ 1971 अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन. ओके, नेक्स्ट, sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases or STD. STD जानते ना है हम लोग, 10th क्लास में स्टडी किया हम लोग STD. Yes, sir. Yes, STD. transmitted. अच्छा, STD का एक दूसरा नाम भी है, क्या नाम है? Venereal diseases. VENEREAL. Venereal diseases. और VD बोलता है इसको, Venereal diseases और VD, sexually transmitted diseases, और that means venereal diseases. अच्छा, हम लोग जो STD कॉल करते हैं, STD जब फोन करते हैं उसका भी तो नाम STD, उसका पूरा नाम क्या है बताओ तो? Sexually transmitted Subscriber disease. trunk. नहीं, STD जो फोन कॉल में STD कॉल करते हैं उसका पूरा नाम क्या है? Sir, subscriber trunk dialing. ट्रंक डायलिंग. ठीक है, और ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ओके, याद रखोगे. और इसका ऑल्टरनेटिव नेम भी है वेनेरियल डिजीज और VD. एग्जाम्पल में तो बहुत होगा. एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा गोनोरिया, GONORRHEA, गोनोरिया. AIDS. हाँ, गोनोरिया, GONORR होगा, GONORR, HOEA, गोनोरिया. सिफिलिस दो हो गया, सिफिलिस, गोनोरिया. उसके बाद है क्लामाइन, CHLA, क्लामाइडोमोनियासिस, क्लामाइडियासिस लिखोगे, क्लामाइडियासिस. ये हो गया, एड्स हो गया. ठीक है, इतना सारा नाम है. एग्जाम्पल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. अच्छा, ट्राइकोमोनियासिस और एक डिजीज है, ट्राइकोमोनियासिस. से भी लिखो, ट्राइको, TRICHO, ट्राइकोमोनियासिस. जनरली ये जो है डिजीज पर्टिकुलरली हम लोग स्टडी करते हैं एड्स का बारे में. एड्स के बारे में आप लोग नेक्स्ट जो चैप्टर, नेक्स्ट नहीं है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसका बारे में डिटेल्स आपको स्टडी करना है. एड्स वायरस कैसे बॉडी में एंट्री होता है, लाइफ साइकिल क्या है, मैक्रोफेजेस क्या अटैक करते हैं, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद इम्यूनिटी पावर को कैसे डैमेज कर देता है. That's why person are not able to protect any type of the infection against bacteria and viruses, even fungi also. So immunity power बहुत कमजोर हो जाता है. अच्छा, अभी एक डिजीज जो हो रहा है आफ्टर कोरोना, COVID-19, इसका डिजीज का नाम क्या है? ब्लैक फंगस नाम है ना? Yes, नाम sir. सुना ब्लैक फंगस? न्यूज में बार-बार बोल रहा है कोरोना के बाद Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें कौन सा फंगस इसमें इन्वॉल्व है? कैन यू से द फंगस, इट फंगल डिजीज. अगर इन लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, म्यूकोर नाम सुने? म्यूकोर, Yes, Yes, sir. sir. म्यूकोर नाम सुने? तो ये म्यूकोर माइकोसिस का नाम है. इन जो फंगिस है, ये डिजीज का नाम म्यूकोर माइकोसिस, और म्यूकोर से
ज्यादा होता है इससे, ठीक है। ये ब्लैक फंगस का नाम है, ब्लैक फंगस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन, ये जितना सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, सिम्टम्स ऑफ, सिम्टम्स सिम्टम्स ऑफ STD क्या होता हो, इसमें जनरल सिम्टम्स ऑफ, इसमें लिखोगे इचिंग, इचिंग होगा बॉडी पार्ट्स में और किसी पार्ट्स में इचिंग हो सकता है। इसके बाद फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम genital tract, burning sensation, burning sensation, burning sensation during urination, urination, burning sensation during slight pain, slight pain and weight loss, swelling in the weight loss, swelling in the genetic tract, genital tract. So these are the common symptoms of STD. Itching होगा, fluid discharge from the genital tract, burning sensation during urination, slight pain, weight loss, swelling in the genital tract. So these are the common symptoms of STD. याद रखोगे, all sexually transmitted diseases having some common symptoms. यूरिनेशन का टाइम में बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन और भी बहुत सारा प्रॉब्लम से होता है। अगर यूरिन में इंफेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट में, उससे भी हो सकता है, बट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी होता है। इचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, इसके बाद स्लाइट पेन, वेट लॉस, swelling in the genital tract. These are the common symptoms of sexually transmitted disease. ठीक है? Yes, so complete. Complete. इसके बाद Yes, sir. transmission of sexually transmitted disease. Transmission of sexually transmitted disease. ये तो आप लोग जानते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ STD, transmission of STD. इसमें नंबर 1, that means sharing of injection needles, sharing of injection needles, injection needles, sharing of injection needles or surgical instrument, surgical instrument. ये नंबर 1। नंबर 2 में आपका ट्रांसफ्यूजन ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड, फ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम में किसी को अगर ब्लड डोनेट किया जाए और ब्लड बैंक से अगर ब्लड कलेक्ट किया जाए, तो जनरली हम लोग देखते हैं उसमें HIV नेगेटिव लिखा हुआ है। तो HIV नेगेटिव, दैट मींस नो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एड्स। ओके, सो ट्रांसमिशन का टाइम में देख लेना है, जिससे आप ब्लड डोनेट कर रहा है उसका ब्लड को टेस्ट कर लेना है। वो तो ग्रुप टेस्ट होता है ब्लड, बिफोर ग्रुप टेस्टिंग अनदर टेस्ट, दैट इज कोई उसमें एड्स का कोई वायरस उसमें है कि नहीं। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये देखना है
ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रोफेशनल जो ब्लड डोनर होता है, बहुत सारा हॉस्पिटल और नियरेस्ट नर्सिंग होम में किसी को अगर ब्लड का जरूरत पड़ जाता है, वहां प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स मिल जाता है. इज इट करेक्ट टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम प्रोफेशनल ब्लड डोनर? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, No, प्रोफेशनल ब्लड डोनर से ब्लड कभी लेना नहीं है. बहुत सारा लेबर कास्ट और जो होता है शिक्षा पुलर है, ये लोग है क्या पैसा के लिए लोग ब्लड डोनेट कर देता है, लेकिन उसका ब्लड कभी कलेक्ट नहीं करना या लेना भी नहीं चाहिए. ठीक है, क्यों ना उसमें इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड में कुछ इमेच्योरिटी पाया जाता है. ठीक है, तो this is not possible or it is totally wrong to collect the blood from a professional blood donor. Okay, next, transfer of infected mother. Transfer from, ये तीसरा में लिखोगे transfer from infected mother to the fetus, to the developing fetus. ओके, ये हो गया आपका. अगर माँ का बॉडी में HIV का ये है जर्म है तो डेवलपिंग फिटस का बॉडी में भी आ जाता है. ठीक है, क्यों ना हम लोग जानते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या ट्रांसफर होता है. That's why the developing fetus also affected through the placenta. Fetus to the developing fetus placenta से ज्यादा होता है. ठीक है, next, अच्छा, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंशन इसमें हमेशा आप लोग स्टडी किए हैं. That means safe, that means always use, that means mono, that is polygamous, that's a sexual contact not more than one person, that is called the monogamous. अगर polygamous होता है तो this is a chance for the transmission of the sexually transmitted diseases. और भी बहुत है. डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल से सब हमेशा यूज करना है, क्योंकि आजकल हमेशा ये सब यूज किया जाता है. और कभी कभी होता है, ये बुक में नहीं है, सेफ्टी रेजर जो सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनाने या बाल बनाने के लिए जाते हैं, उससे भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में अगर कट होता है, उस रेजर और इंस्ट्रूमेंट को ठीक से सैनिटाइज नहीं किया जाता है और स्टेरिलाइज नहीं किया जाता है तो दूसरा बॉडी में जाके वो इन्फेक्ट कर सकता है. तो ये होता है वेज ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन. ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारा है. अच्छा, गोनोरिया का पैथोजन का नाम क्या है बताओ तो? निसेरिया गोनोरिया बुक में एनसीईआरटी में नहीं है, रेफरेंस बुक में देख लीजिएगा. निसेरिया गोनोरिया होगा उसका, ये पैथोजन का नाम है. एड्स का तो जानते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. अच्छा, नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी. हेलो, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. infertility क्या होता है? What is infertility? Infertility, ये infertility जो है, that is, it is the ability, it is the inability, it is the inability, ability to produce children in spite of, to produce children in spite of unprotected sexual unprotected
sexual intercourse. This is called the infertility. This is called infertility. It is the inability to produce children in spite of the unprotected sexual intercourse. ठीक है? अच्छा, क्या कारण से हो सकते? What are the causes of infertility? Definition लिखो infertility का. Stress. It is the inability to produce children in spite of unprotected sexual intercourse. Causes of infertility. Next one, causes of infertility. Causes of. सर एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर ओवेरियन सिस्ट जो होता है फीमेल में, हाँ हाँ सर वो क्यों होता है? एक्चुअली ये ओवरियन जो सिस्ट और इसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, दैट इज वेरी कॉमन नाउअडेज. ठीक है, यूटेरस में होता है. तो यूटेरस का जो लाइनिंग होता है, जैसे ब्लीडिंग का टाइम में होता है, किसी लाइनिंग में मान लीजिए कोई चोट आ गया, किसी कारण से उसमें डैमेज हो गया ज्यादा, वो थोड़ा ये लंप ऑफ सेल, हम लोग जानते हैं फाइब्रॉइड जैसे यूटेरस में होता है ना ट्यूमर, अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट होता है. तो ट्यूमर कंडीशन जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है उसमें लंप ऑफ टिश्यूज बन जाता है. ठीक है, तो वो एक कॉमन है. क्यों ना किसी किसी में जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होता है उसमें एक कॉमन होता है, किसी किसी में जेनेटिकली ये भी पाया गया. तो फाइब्रॉइड और सिस्ट जो ओवरियन सिस्ट होता है, इसमें बिफोर प्रेगनेंसी डॉक्टर से थोड़ा कंसल्टेशन करना है. अदरवाइज कभी कभार होता है अगर सिस्ट फाइब्रॉइड सिस्ट है तो प्रेगनेंसी में क्या है, फेटस उसमें डेवलपमेंट में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है. तो सिस्ट को पहले डिलीट कर दिया जाता है ऑपरेट करके, तभी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो. बट इट इज वेरी नाउअडेज बहुत सारा फीमेल में चीज देखा जाता है जो ओवरियन सिस्ट जिसको बोलते हैं, इसको फाइब्रॉइड बोलते हैं, और बाद में ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये कॉमन होता है. एक तो जेनेटिकली होता है, दूसरा बात ये है जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होता है उसमें लाइनिंग जो यूटेरस का जो 3 लेयर है, कौन कौन 3 लेयर है? पेरिमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम. लेयर में डिफॉर्म स्ट्रक्चर होते होते किसी एक एरिया में घाव, लेसियन हो जाता है घाव. तो वो उसमें क्या होता है ना, ये वहां सेल डिवीजन में थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लगातार अगर घाव होगा तो नेचुरली वो खराब पोजीशन में जाता है, मैलिग्नेंसी टुवर्ड्स द मैलिग्नेंसी की तरफ से जाता है, होता है ना. जैसे लिवर में अगर बहुत दिनों से प्रॉब्लम है तो लिवर कैंसर होता है. अगर लंग्स में बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, लेसियन घाव होता है, तो नेचुरली लंग कैंसर होता है. अगर मान लीजिए हमारा इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्टोमक में हमारा जो लेसियन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में वो जो भी है प्रॉब्लम घाव होता है, तो नेचुरली क्या हो जाता है ना, वो पेप्टिक अल्सर क्या होता है ना, वो धीरे धीरे कैंसरस में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो लाइनिंग ड्यूरिंग द